Namaskar दोस्तों, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist, and you're watching Dr. KK's Med Talks, Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 793वां 793rd एपिसोड है. Let's have the headlines for today. A study has revealed that patients with treatment-resistant depression, जिनको डिप्रेशन होता है और वो 3 दवाइयों से ठीक नहीं होता, they are at higher risk of early death. तो डिप्रेशन का डेथ से भी लिंक है. A study published in the Lancet says that more than 58% of all cases of cervical cancer, CA cervix, इस पे हमने पहले बात की है के मेड टॉक्स पे with Dr. मीनू ठाकुर मैडम. 58% of all cases were estimated to be in Asia, with India accounting for the highest number of cases at 21%. Another study has shown that acute kidney injury, kidney damage, can be treated by widely available medicinal drugs. So this is good hope for people with kidney disease. And the World Health Organization chief has requested China to share data so that we can probe the origins of COVID-19. This is important क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि पहले हमसे कोई गलती हुई, कोई भूल चूक हो गई, हम उसे आगे होने से बचा सकते हैं. We can prevent these mistakes from occurring again in future. And speaking about China, China का माल China का है, but the AIIMS Delhi server attack originated in China. This is what our government says. And data from 5 servers has been retrieved safely. So much excitement going on in the world. Let's look at our topic for today. Another exciting topic. हमने केके में टॉक्स पे कई बार ओबेसिटी पे बात की है, चर्चा की है मोटापे पे. टुडे वील टॉक अबाउट ओबेसिटी कट ऑफ्स एंड आज का हमारा जो फॉर्मेट है थोड़ा सा भिन्न होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट गेस्ट हैं वो गेस्ट ही नहीं, वो होस्ट भी हैं. He has been with us so many times, a very familiar and a very friendly, super friendly face. Let's introduce and welcome once again Professor Nitin Kapoor. Warm welcome, sir. Thank you so much, sir, for having me again. It's indeed a pleasure. बहुत अच्छा लगता है केके में टॉक पे वापस आके and talking about obesity with you, sir. It's a privilege and honor. And lots of people logged in, all welcoming you back into the family. And सब पूछ रहे हैं सर आप थे कहाँ पे इतनी देर? So Dr. Gauri Shankar Dharmaraj from Karnataka, greeting you. Vivekanand Mantuji, Swapna Jain madam from Vellore, from your hometown, and Dr. Sanjeev Puri from Hoshiarpur. Dr. Meshpal Singh Pawar, our pediatrician. Lalit Kathuria Saab, who is a very perfect brand for being fit and fabulous and for being able to fight obesity properly. Blessings to you, sir, from Dr. N.S. Sharda, sir, from Ahmedabad. Vinny Joglekar ji has joined from Bangalore. She's a nutritionist. And Dr. Pradeep Rawal has joined from Ujjain in Madhya Pradesh. Dr. Nitin Kapoor, you all know. Professor Kapoor is a professor of endocrinology, diabetes and metabolism at Christian Medical College, Vellore. Not only his MD and DM, he's also done a PhD. And his PhD was on obesity at the University of Melbourne in Australia. He has been conferred with several prestigious awards, including the A.R. Seth Gold Medal of the Endocrine Society of India and the Young Investigator Award of the Sri Lankan Endocrine Society. He's also the editor of the textbook on diabetes, which is actually my favorite textbook, A Practical Guide to Diabetes Mellitus. This is published by JP, I think, and it's organized by the Department of Endocrinology in CMC Vellore. And Dr. Vipin Mandula is also logged in. Sir is a pediatrician from Kangra in Himachal. So, Dr. Nitin, आज का हमारा टॉपिक है obesity cut-offs. We have discussed obesity many times in the past on KK Med Talks, आपके साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी. अंशु सिंह जी भी आ चुके हैं. But ये तो बताएं, obesity पे बात करना जायज़ है, but why is the topic obesity cut-offs today? नहीं, so I think that is a very, very important point जो आपने raise किया. Obesity is a very big subject, but cut-off specifically बहुत ही important है because not only as a doctor, but even as a common man, हमें अपना obesity खुद assess करना आना चाहिए. हमें cut points help करते severity of obesity assess करने के लिए, but
दी अदर इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेशली जब हम यहाँ इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में बात करते हैं, हमारी जो कट ऑफ्स हैं वो वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत ही अलग है। जो एक अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो हम पे अप्लाई नहीं होता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक इन आवर रीजन, द साउथ एशियन रीजन, कि हमारे लिए क्या स्पेसिफिक कट ऑफ्स हैं। दीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कब हमें ट्रीटमेंट लेना है, कब हमें समझना है कि हम बेटर हो गए, कब हमें बड़ा ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी उस टाइप का ट्रीटमेंट लेना है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जो नंबर्स होते हैं ओबेसिटी के, एंड वी आर सेइंग नंबर्स इन प्लूरल, नॉट इन सिंगुलर, ये एक तो हमें डायग्नोसिस में मदद करते हैं, दूसरा हमें सिवेरिटी बताते हैं, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन. सो दे हेल्प अस इन सस्पिशन, इन स्क्रीनिंग. दे ऑल्सो हेल्प अस इन स्ट्रेटिफिकेशन. दे हेल्प अस इन डिसाइडिंग द सिवेरिटी, एंड दे हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर भी हम कैसे चलें. And they also work like milestones, because they tell us whether we are on the right path or not. विवेक सिंह जी लॉग्ड इन हैं, और वो कहते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल वाज माय ओनली होप ड्यूरिंग द कोरोना डेज, एंड दैट विवेक इज ट्रू फॉर मेनी ऑफ अस. एक्चुअली सर वाज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ही गाइडेड मी विद हिज होपफुल टॉक्स. यस, सर वाज ऑप्टिमिस्टिक अंटिल द वेरी एंड. अगर ऑप्टिमिज्म का कैपिटल ओ है, वो सर में था, सर के दिल में था. और उन्होंने मेरे फियर को जो हवा किया, मतलब गायब किया, हवा में डाला. वी ऑल मिस हिम. डॉक्टर कपूर, डॉक्टर एन.एस. शारदा queries you, obesity is the mother of metabolic syndrome. Is this statement correct, false, or partly correct? आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बिकॉज अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि जब किसी को डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी और मोटापा, इन चारों में से एटलीस्ट तीन चीजें प्रेजेंट हो तो फिर उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। पर देखा जाए कि अगर किसी को मोटापा है तो शुगर होने का चांस, ब्लड प्रेशर होने का चांस एंड कोलेस्ट्रॉल होने का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो 100% नहीं बोलेंगे कि करेक्ट है, बट हाई चांस कि अगर ओबेसिटी है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होने का चांस बहुत ज्यादा है। अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं. डॉक्टर प्रदीप रावल आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो लेट्स टॉक अबाउट सम वर्ड्स इन इंग्लिश. ओबेसिटी, एडिपोसिटी, डायबिसिटी. तो एक एक करके लेते हैं. तो ये तीन चीजें क्या हमें अलग अलग बताती हैं? बिल्कुल, तो ओबेसिटी, एडिपोसिटी और डायबिसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग तीनों वर्ड्स, तीनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, पर ओबेसिटी अगर देखा जाए तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स एंड कट ऑफ, जैसे हम बोल रहे थे, जैसे सिंपल चीज अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जैसे बीएमआई का प्रॉब्लम, बॉडी मास इंडेक्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसके हिसाब से हम ओबेसिटी बोल सकते हैं। पर एडिपोसिटी जो वर्ड है वो स्पेसिफिक यूज किया जाता है बॉडी में फैट कितना है उसको जानने के लिए, और अगर हमारे को ओबेसिटी है और साथ में शुगर भी है तो उसको डायबिटीज प्लस ओबेसिटी, डायबिसिटी बोलेंगे। तो ये तीनों सिमिलर है पर अलग भी है। तो अगर डायबिसिटी तो हो गया, अभी डायबिटीज है साथ में. एंड वी ऑल्सो हैव डॉक्टर खिलेंदर सक्सेना, सर इज अ गायनोकोलॉजिस्ट. तो डायबिटीज को अगर हम साइड पे रखें, सिर्फ ओबेसिटी की बात करें, व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन मेजर ओबेसिटी? राइट, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हमको ओबेसिटी मेजर करना है तो हम दो चीज हमेशा याद रखेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक हम किस इंडिकेटर से ओबेसिटी को मेजर करने वाले हैं, और दूसरा जैसे डॉक्टर काने ने बोला हम क्या कट ऑफ यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है, सिर्फ एक चीज से काम नहीं होगा, कौन सा इंडिकेटर यूज किया और क्या कट ऑफ पॉइंट यूज किया। हम इस शो में पूरा बात करेंगे, ओवरऑल वी कैन डिस्कस अप टू 10 different ways in which we can measure obesity scientifically, as well as even as a person, even not being as a medical person, there are 10 different ways to measure it, but the most common way अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड बॉडी मास इंडेक्स से हम ओबेसिटी को मेजर करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में थोड़ा देखा जाए कि कब डिस्क्राइब हुआ, क्या है, तो एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है। इसको 200 साल पहले, वो भी किसी डॉक्टर ने नहीं, मैथमेटिशियन, एक बेल्जियन मैथमेटिशियन ने अराउंड 1862 इसको डिस्क्राइब किया। एंड अडोल्फ क्विटलेट उनका नाम था, इसलिए इसको क्विटलेट इंडेक्स भी बोला जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स एक सिंपल मेजर है जिसमें आपका वजन किलोग्राम में डिवाइडेड बाय आपका हाइट मीटर में, हाइट स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर में दो बारी हाइट को लिखना है और न्यूमरेटर में
आपका वजन को लिखना है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर गिव्स यू योर मैजिक नंबर विच इज बीएमआई। एंड अगर आपका बीएमआई इन द साउथ एशियन रीजन 18.5 से 22.9 के बीच में आता है, तो वी कैन से दैट इज नॉर्मल। So we are talking first of all about how to measure obesity, and जैसे डॉक्टर साहब ने कहा there are so many ways of measuring. तो मैं तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि कौन सा मेथड है जिसमें मैं पतला दिखाई दूं, बट दैट इज फॉर लेटर. The most commonly used indicator is BMI, body mass index. It has been around for 2 centuries. It is economical और फ्री में चेक हो जाता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड इट. पता चलता है हमें कि BMI कम हो या नॉर्मल हो तो बीमारी भी कम होती है, डेथ भी कम होती है. देयर इज लेस मॉर्बिडिटी एंड देयर इज लेस मॉर्टेलिटी. BMI ज्यादा हो तो गड़बड़ भी होने के चांसेस ज्यादा हैं. So that is one method. There are other methods. Let's go through them one by one, and then we'll talk about cutoffs for India, cutoffs for the rest of the world, cutoffs for men and women. आज आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि डॉक्टर नितिन कपूर ये डिस्कशन कंटिन्यू करें. For those of us who have not met him before, he is one of the leading experts in obesity worldwide, and भारत का नाम रोशन करते हैं, हमारा भी साथ में, हमारा परचम लहराते हैं पूरी दुनिया में. Dr. Nitin, just for a minute, if we can off track, would you like to speak about your work on obesity and two specific things? एक तो ये बताएं भारत का नाम कैसे रोशन किया, because all of us will be very happy to hear that. And दूसरा ये बताएं specifically epidemiology of obesity में आपने कोई recently कोई research की हो जिससे पता चलता हो कि obesity का कितना भार है, कितना बोझ है हमारी कंट्री पे. Right. So thank you, sir, for that introduction. So definitely, obesity has been my area of work, and my PhD was on that. तो भारत का नाम रोशन करने के लिए अभी हाल ही में देखेंगे तो अभी काफी इंडियन डॉक्टर्स यूरोप में थे. यूरोप में पोर्टुगल के कैपिटल सिटी लिस्बन में थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन देयर. तो वहाँ पे हमारा ओबेसिटी का काम जो था वो हमने प्रेजेंट किया और उसको सिलेक्ट किया गया. सारे ओवर 500 डिफरेंट पेपर्स में कुछ 50 पेपर्स को सिलेक्ट किया गया ओरल प्रेजेंटेशन के लिए. तो उसके लिए I was there, and a lot of our colleagues were there. Dr. Kalra had a few papers, and unfortunately sir could not travel, so I had the privilege of presenting those as well. कैसे obesity को कम किया जा सकता है, क्या क्या यूज किया जा सकता है उसके लिए, तो उसके ऊपर भी 2 पेपर्स थे. So I think that in short was the recent achievement globally, but more importantly talking about obesity. दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? Epidemiology of obesity in India. Obesity. तो अगर हम पढ़े तो डॉक्टर कालरा का एक बहुत प्यारा पेपर है, बहुत साल पहले लिखा था, द वेट ऑफ द नेशन. तो सुन के मालूम होता है कि क्या भार है, बट उसके बाद वी लुक्ड एट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा एक नेशनल डेटा है, ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किया जाता है. इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंडियन, रूरल, अर्बन, सारे टाइप के स्क्रीनिंग किया जाता है. ओवर 1 लाख के आसपास का ये डेटा है, 1 लाख लोगों का. एंड इसको लास्ट ईयर हमने पब्लिश किया था, जिसमें हमें मालूम हुआ कि 35 से 40% इंडियन पॉपुलेशन या तो ओवरवेट है या ओबीस है. ओवरवेट बोले तो उनका बीएमआई 23 से ज्यादा है, या ओबीस मतलब 25 से ज्यादा बीएमआई. तो दैट वाज वन पेपर. हाल ही में 6 महीने पहले वी लुक्ड एट अनदर बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इन एल्डरली, जिसमें हम सार्कोपिनिक ओबेसिटी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट जिसमें एल्डरली लोगों का मसल मास कम होता है पर उनका फैट ज्यादा होता है. तो उसकी परसेंटेज हमने देखी 60 साल से बुजुर्ग लोगों में 1 out of 10, अराउंड 9.8% लोगों में सार्कोपिनिक ओबेसिटी था. So that was another very recent paper on obesity. Right. So with this, let's go on to our main topic for today. आपने बात की BMI की, बॉडी मास इंडेक्स, मगर डॉक्टर NS शारदा सर पूछ रहे हैं, इन एथलीट्स is BMI applicable? What about maybe a wrestler from Haryana or a sumo wrestler from Japan? ये तो भारी हैं, तो does that mean that they are unhealthy? Very, very relevant question, Dr. Sharda sir. And that's why BMI के अपने कुछ limitations हैं, और इसलिए और भी indicators को देखना पड़ता है. तो जैसे अगर आपने पूछा कि जैसे बॉडी बिल्डर है, उनका वेट शायद 100 किलो होगा, पर 100 किलो में फैट कितना होगा? बहुत कम.
तो उसमें मसल मास ज्यादा होगा, तो इसलिए बाकी ओबेसिटी इंडिकेटर्स भी जरूरी है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट एक मेजर जो हम बात करेंगे थोड़ी देर में, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, जिसमें हम बॉडी फैट के बारे में बात करेंगे। तो यस, तो उसमें बॉडी फैट कम आएगा, तो इसलिए वो हम रेसलर को ओबीस नहीं कहेंगे अगर हम उनका बॉडी फैट मेजर करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ obesity indicators that we have, and we'll be talking about it shortly. सो आई विल बी टेकिंग योर लीव फॉर टुडे। आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं आपके साथ कंटिन्यूसली पूरा घंटा भर नहीं रह पाऊंगा, बट डॉक्टर नितिन कपूर हैं हमारे साथ, एंड ही विल बी आंसरिंग ऑल द कमेंट्स, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज। और जैसे कि आप जानते हैं, ये एक्सपर्ट हैं ओबेसिटी में और हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। सो विद दिस डॉक्टर नितिन, आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू द program Sure, sir. and We to will definitely miss your presence, but I hope to live up to that expectation, and happy and safe travel. एंड सो विद दिस विल कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे हैं बीएमआई की, एंड काफी सारे सवाल आ रहे हैं बीएमआई पे। डॉक्टर प्रदीप रावल सर पूछ रहे हैं, डज बीएमआई चेंज विद एज? और सबसे जो गोल्डन क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ टू लोअर बीएमआई, दैट हैज बीन आस्क्ड। सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यस, बीएमआई डज चेंज विद एज। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वी टेंड टू हैव एन इंक्रीज इन आर वेट। तो वेट जैसे ही बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा बीएमआई भी बढ़ेगा। सो विद एज बीएमआई डेफिनेटली इंक्रीजेस। हाउ टू लोअर बीएमआई, वो तो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है, पूरा एक उस पर अलग लेक्चर होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमें एक कॉर्नरस्टोन देखना है बीएमआई के लिए, तो दैट वुड बी very good lifestyle, very good diet and exercise, and that is something which is important. So रेखा जी पूछ रहे हैं कि आपने अपना बीएमआई कैसे चेक करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दो चीज चाहिए बीएमआई चेक करने के लिए। एक आपको चाहिए आपका वजन, और दूसरा आपको चाहिए आपकी हाइट। तो वजन और हाइट दोनों अगर आपके पास हो तो फिर उससे आप बीएमआई चेक कर सकते हैं। वजन किलोग्राम में मेजर करिए और हाइट अपना मीटर में मेजर करिए। तो आपका हाइट जो मीटर में होगा उसका स्क्वायर करना है, मतलब हाइट इनटू हाइट। तो जैसे अगर हमारा हाइट 150 सेंटीमीटर है तो 1.5 मीटर होगा, तो 1.5 इंटू 1.5 आपका ये हाइट स्क्वायर आ जाएगा। तो वजन को हाइट स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो बीएमआई आ जाता है। तो दैट इज हाउ वी चेक आवर बीएमआई। तो राइट, तो अभी हम बात करते हैं कि कितने डिफरेंट मेथड्स हैं हमें हमारा वजन या ओबेसिटी स्टेटस जानने के लिए। तो काफी सारे तरीके हैं। बीएमआई के बारे में हमने बात किया, बट ऑल्सो वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशियो के बारे में बात करेंगे, वेस्ट हाइट रेशियो के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी से बीएमआई था, पर वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट हाइट रेशियो, बट इवन आजकल देखिए हमारे इंडियन सिचुएशन में हमारे जो क्लोथिंग रहती है काफी डिफरेंट रहती है। तो कोई साड़ी पहन के आते हैं, कोई पैंट शर्ट पहन के आते हैं, कोई कुर्ता पजामा पहन के आते हैं। तो इट इज very difficult to measure waist related parameters, though we'll discuss about it and क्यों ये important है। but आजकल अगर नए parameters क्या हैं जिससे हम obesity measure कर सकते हैं, neck circumference, wrist circumference, हम इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, neck का circumference या आपका जो कलाई का circumference है, that is something very easy to measure because उसमें कोई वहां पे कपड़े नहीं होते हैं, and easily we can measure, but we'll also discuss some high end measures जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे बॉडी फैट परसेंटेज। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एथलीट के लिए कैसे उसका बीएमआई ज्यादा आएगा, पर फिर भी हम उसके लिए कैसे ओबेसिटी को असेस कर सकते हैं। बॉडी फैट, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स को हम असेस कर सकते हैं, विसरल फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट। तो ये लगभग 9 से 10 प्रकार हैं जिससे हम ओबेसिटी असेस कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड अभी खिलेंद्र सक्सेना जी पूछ रहे हैं कि इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इन वुमेन रिलेटेड टू बीएमआई? सो आई वुड से डेफिनेटली आंसर इज यस। जितना हमारा वेट ज्यादा होता है वुमेन में, तो उतना हमको एक बीमारी जिसको हम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, वो होने का चांस काफी बढ़ जाता है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का चांस बढ़ गया तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना है। तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है
कि is menstrual irregularity related with obesity or BMI? Answer is 100% yes. डॉक्टर संजीव कुमार सर सबको नमस्कार बोल रहे हैं, आपको भी नमस्कार. एंड शारदा जी पूछ रहे हैं रोल ऑफ ओबेसिटी इन पीसीओएस और उसका क्या सोल्यूशन है. वेल, सोल्यूशन इज टू lose weight and maintain weight. I think we should have another session on treatment of obesity because there are so many questions related to that. We should take that up, and I will definitely recommend Kara sir to do that now. But later on, Ramesh Pal Singh Panwar ji पूछ रहे हैं कि उनका उम्र 73 इयर्स है, उनका वजन 108 किलो है, एंड उनको हल्का शुगर भी शुरू हो रहा है. एंड डेफिनेटली आपका वेट आपके हाइट के लिए, उनका हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो डेफिनेटली आपके हाइट के लिए ये वेट ज़्यादा है. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको. तो वजन कम करना ज़रूरी है. आई थिंक आपकी केस में क्योंकि हल्का शुगर भी हो रहा है, तो डेफिनेटली डायबिटीज के लिए मीठा अवॉइड करना है. मीठा अवॉइड करने से अगर आप देखें कि आप दिन में कितना चीनी लेते हैं, तो डेफिनेटली वो कम करने से वजन भी कम होगा. So I think let's get on to the topic. There are a lot of other questions coming in, and we will take them as we go along. But we spoke about BMI. हमने BMI के बारे में बात किया, जिसमें उसको कैसे मेजर करना है. हमने देखा कि नॉर्मल BMI हमारे इंडियन या साउथ एशियन रीजन के लिए जो नॉर्मल BMI होना चाहिए वो 18.5 से लेके 22.9 तक होना चाहिए. अगर हमारा BMI 23 से ऊपर है तो हम बोलेंगे कि ओवरवेट स्टेटस है, या हमारा BMI 25 से ऊपर है तो हम बोलेंगे कि ये ओबेसिटी है. पर BMI अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम इंडियंस का वेट हाइट एज कंपेयर टू कॉकेशियन पॉपुलेशन या जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, अमेरिकन या इंग्लिश लोगों की जो पॉपुलेशन है, उससे हम लोग काफी छोटे और पतले दिखते हैं. तो BMI may not be as appropriate, but अगर आप इंडियन स्टेट्स में जनरली इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे, we are famous for having a pot belly या abdominal obesity. तो इसके लिए हमारे लिए वेस्ट रिलेटेड पैरामीटर्स जैसे वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हमारा कमर का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, उस पे काफी डिपेंड करता है कि क्या ओबेसिटी है या नहीं है. तो कमर के लिए कैसे मेजर करते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस? आई थिंक इट इज सिंपल. एक सिंपल मेजरिंग टेप ही चाहिए इसके लिए, और इस मेजरिंग टेप की हेल्प से वी कैन टॉक अबाउट जस्ट मेजरिंग कि हमारा जो बेली बटन है उसके आसपास अगर हम टेप को पूरा राउंड करके देखें और हम पूरा अपना सांस निकाल के, मतलब एक्सपिरेशन में अगर देखें, तो डेफिनेटली जो भी हमारी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस. अब कितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस अब नॉर्मल है, तो इसमें मेन एंड वुमेन के लिए अलग कट ऑफ्स होते हैं. तो a waist circumference value more than 90 centimeters in men and a waist circumference value more than 80 centimeters in women is said to be abnormal. So this is again a cutoff which is used for the South Asian population, and Western cutoff जो है वो इससे कहीं ज्यादा है. तो अगर हमारी पैंट का साइज 90 सेंटीमीटर से ज्यादा या विमेन में 80 सेंटीमीटर के ज्यादा है जो उसका वेस्ट है, तो फिर दैट इज डेफिनेटली अब नॉर्मल. एंड उससे हमें मालूम होता है कि हमारा जो चर्बी है वो पेट के आसपास ज्यादा है, और वो ही ज्यादा खराब टाइप का चर्बी है. इसके बारे में दोबारा बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट the visceral fat and subcutaneous fat in some time. But it's important to remember the second obesity indicator that we are discussing today is about waist circumference. अब वेस्ट सर्कमफ्रेंस के हेल्प से हम लोग दो और ओबेसिटी इंडिकेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. एक सिंपल है वेस्ट टू हाइट रेशियो, और एक सिंपल है जिसमें हम दे सकते हैं वेस्ट वर्सेस हिप सर्कमफ्रेंस. अब ये हिप सर्कमफ्रेंस क्या है? हिप सर्कमफ्रेंस है कि आपके बटक्स के आसपास मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस कितना है. तो अगर हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हिप सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं तो वी गेट वेस्ट बाय हिप रेशियो. और अगर हम हमारे वेस्ट कमर के सर्कमफ्रेंस को हाइट के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वी गेट वेस्ट हाइट रेशियो. अब काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो लेट्स लुक एट दैट अ लिटिल बिट. सो हाउ टू फाइट आवर ब्रेन्स क्रेविंग फॉर पिज्जा एंड पास्ता? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि पिज्जा एंड पास्ता में भी आप प्रोटीन को बढ़ाइए. आप अपना प्रोटीन
मतलब जो भी आपका पनीर है या फिर आपका फिश या चिकन है, अगर वो स्मोक्ड है, ज़्यादा ऑयल में नहीं कुक्ड है, तो अगर आप वो डालेंगे तो पास्ता का प्रोपोर्शन या ब्रेड का प्रोपोर्शन कम करके इसको ज़्यादा डालिए, तो उससे भूख भी कम लगे एंड यू कैन स्टिल हैव दिस काइंड ऑफ फूड्स ओकेजनली। डॉक्टर संजीव पुरी पूछ रहे हैं कि उनका उम्र अराउंड 44 ईयर्स है, उनको 10 साल से शुगर है विच इज वेल कंट्रोल्ड, बीएमआई इज 25.4, सो कैन ही टेक एग विद योक और ओनली वाइट इज अलाउड, एंड तो योक नहीं लेना चाहिए 18 साल से ऊपर, तो वो पूछ रहे हैं योक लेना चाहिए या नहीं। तो पहली बात, बीएमआई 25.4 से ज्यादा है, तो 25 से ज्यादा है तो डेफिनेटली वी आर इन दी ओबीस कैटेगरी, वजन कम करने की जरूरत है वहां पे। एंड एग योक के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है, बट आई वुड से दैट डिपेंडिंग ऑन योर कोलेस्ट्रॉल, एग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक एक अंडे में आपको अराउंड 6 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है, बट उसमें योग के साथ कैलोरीज बढ़ जाते हैं। तो इफ यू आर टेकिंग मे बी 1 or 2 eggs every day, I would say you reduce the yolk, not on every egg, but maybe take it twice or thrice a week and not daily. Is grinding stone helpful in reducing visceral fat? The answer is yes. This is one of the ethnic ways of reducing fat, but I'm not sure कि आजकल कितने लोगों के घर में grinding stone है. And but yes, that is something which helps to use the abdominal muscles, especially, and helps to reduce visceral fat. So people are asking about yolk and cholesterol. Again, another question for by Mr. Sanjeev Puri. So as I said, I wouldn't recommend it with every egg white. I would say that occasionally it will be good. Pradeep Rawal ji पूछ रहे हैं, what is the life expectancy of a person with obesity? So definitely, if you have obesity, you can treat it. ऐसा नहीं कि एक बार ओबेसिटी हो गया तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गया। डेफिनेटली इफ यू टेक केयर ऑफ योर obesity, which can be managed today with the help of lifestyle, diet, exercise, and even medicines, if required, even surgery and intragastric procedures, then definitely you can get back your normal life expectancy. So I wouldn't really say कि एक बार obesity हो गया तो life expectancy कम हो गया। Pradeep Ravalji also पूछे, what are the dangers of obesity? Well, the dangers are not only medical but also mechanical. वजन की वजह से हमारे घुटनों पे असर होता है, हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम में होता है, दिक्कत होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं, और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ओबेसिटी इज मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम जिससे काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं, नॉट ओनली ऑन द हेल्थ बट इवन ऑन द साइकोलॉजी, इवन ऑन the monetary aspect. हमारे खर्चा भी ज्यादा होता है if our weight is more, so I would say it has multiple facets and multiple dimensions. So any gold standard for testing obesity? गौरी शंकर धर्मराज जी पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड स्टैंडर्ड है। आई थिंक विल टॉक अबाउट इट, बट अगर मुझे देखना है एग्जैक्टली कि मेरे बॉडी में कितना फैट है, द बेस्ट अल्टीमेट मेथड वुड बी डूइंग एन एमआरआई, व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल। एक तो एमआरआई करने में खर्चा काफी होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, और कॉस्ट के अलावा बार बार एमआरआई करने से हम नहीं चाहते कि बॉडी में या सीटी स्कैन करने से हमें रेडिएशन मिले। तो आई थिंक दैट वुडंट बी द बेस्ट वे। आई थिंक द मोस्ट सिंपल वे इज using BMI, but another best method in clinical practice would be to assess fat. And Lalit Katuria ji DEXA के बारे में पूछ रहे हैं, and we'll talk about it in a short time. Can yoga help to reduce weight? Yoga can definitely improve your health. I would say it's more important to maintain weight rather than just reduce weight. Helen J. Devi ji puche, can you please talk in English? So yes, I would try and use both the languages as and when possible. So far what we have spoken about is BMI, we've spoken about waist circumference, but let's also talk about the two other parameters which I said, which we use the waist circumference for, the waist height ratio. And if I'm talking about waist height ratio, what are the cutoffs that we are looking at? So waist height ratio के लिए simple cutoff है 0.46. तो आपने वेस्ट मेजर किया सेंटीमीटर में, हाइट मेजर किया सेंटीमीटर में, we just divide both, and if my value is more than 0.46, then I would say that is obesity. Talking about waist hip circumference, so just reminding कि waist circumference के लिए जब हमने बात किया, we said more than 90 centimeters and more than 80 centimeters is what is the cutoff for men and women respectively. So similarly for waist hip ratio, the cutoff is 0.9,
and zero point 0.8 for men and women respectively. So it's a very simple formula. We're just using 90 and 80 centimeter for waist circumference in men and women. वेस्ट हिप रेशियो के लिए 0.9 एंड 0.8. जब हम रेशियो बोलते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर, सो इट गेट्स डिवाइडेड एंड कट ऑफ. बट यस, दैट्स व्हाट वी use as waist hip ratio. So we've spoken about BMI, waist circumference, hip circumference, waist height ratio, waist hip ratio. Let's talk of some newer parameters जो जिनके बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, पर अभी हाल ही में पिछले 3-4 साल में उसमें काफी रिसर्च हुआ है. एक है नेक सर्कमफ्रेंस और दूसरा है हमारी कलाई का सर्कमफ्रेंस, रिस्ट सर्कमफ्रेंस. तो ये देखते हैं ये कैसे हेल्पफुल है. इंडियन सेटिंग में आई विल से दीज आर वेरी यूजफुल. देखिए बिजी क्लिनिकल ओपीडी में जहाँ पे किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करना हो काफी मुश्किल है, पर नेक सर्कमफ्रेंस, गले में यूजुअली हमने ज्यादा कुछ नहीं पहना होता, टाई स्कार्फ, स्पेशली साउथ इंडिया में इतनी सर्दी के मौसम में भी इतना कुछ नहीं पहनते गले में. तो कैसे मेजर कर सकते हैं नेक सर्कमफ्रेंस? तो नेक सर्कमफ्रेंस एक सिंपल मेजरिंग टेप चाहिए, आइडियली नॉन स्ट्रेचेबल टेप. बट यूजुअल जो हमारी मेजरिंग टेप होती है घर पे नॉन स्ट्रेचेबल होती है, पर वो देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन स्ट्रेचेबल हो. और हमारे सबके गले में एक एडम्स एप्पल बोलते हैं, लैरिंजियल प्रोमिनेंस बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में. तो जस्ट उसके नीचे अगर हम एक परपेंडिकुलर circumference measure करेंगे, so that is what is neck circumference. Now neck circumference cutoffs are also different for men and women separately. So हमारे value of more than 37 is abnormal for women and more than 34 is abnormal for men. So I think this is another important measure. Neck circumference बात कर रहे हैं measure करने के लिए laryngeal prominence के नीचे, and नॉन स्ट्रेचेबल टेप से जब हमने इसको मेजर किया 37 सेंटीमीटर से ज्यादा हो इन मेन या 34 सेंटीमीटर से ज्यादा हो इन विमेन, देन वी कॉल इट अबनॉर्मल. सो ये हमारा नेक सर्कमफ्रेंस है. रिस्ट सर्कमफ्रेंस कहाँ मेजर करते हैं? अगर हम हमारे रिस्ट में देखें तो एकदम रिस्ट के कोने में बोनी प्रोमिनेंस है, उसके इमीडिएट बाद अगर हम मेजर करें, आइडियली दोनों रिस्ट में मेजर करके डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो एक में रिस्ट में भी मेजर करें. एंड इसका जो वैल्यू है बहुत ही सिंपल यूज करते हैं. अगेन मेन एंड वुमेन का अलग है. सो मेन मोर देन 16.5 सेंटीमीटर एंड वुमेन more than 15.5 centimeters. So we're talking of different types of obesity cut points. We're talking of different obesity indicators today, and we've looked at BMI, we've looked at waist related parameters, but we're also talking of some newer parameters like neck circumference and wrist circumference. So there's a lot of other comments coming up, and thank you so much for keeping it so interactive. So how do we reduce morbid obesity, sir, in a diabetic patient? Ye question hai Gauri Shankar Dhamraj se. So how do we reduce morbid obesity? Again, I promise you that we will have another session on management of obesity. There have been a lot of developments more recently in the last 1 year. So we will cover that in a diabetic patient also. I think the most simple answer that I can give is कि आपके जो डॉक्टर शुगर की दवाई दे रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो वैसी शुगर की दवाई दे जिससे केवल शुगर नहीं, वजन भी कम हो. अगर हम शुगर की दवाइयां देखते हैं 3 प्रकार की होती है. कुछ शुगर की दवाइयों से वजन बढ़ता है, कुछ शुगर की दवाइयों से वजन उतना ही रहता है, पर कुछ शुगर की दवाइयों से वजन कम भी हो सकता है. तो आई वुड से कि अगर डायबिटीज है तो हम वैसी दवाइयां यूज करें जिससे शुगर भी कम हो और वजन भी कम हो. So we look old when we are obese in comparison to who isn't, and that's true because जैसे मैंने बोला with age हमारा fat बढ़ता है, but if we keep ourselves fit and we reduce our weight and BMI, definitely we would look much younger. How much body fat can we realistically lose in a week? So अगर हम national guidelines देखें तो what we recommend scientifically, not more than half kg in a week. So that is about 1 kg in 2 weeks, 2 kgs in a month. देखिए जितना जल्दी, अगर हम बहुत जल्दी में अगर हम वेट लॉस करते हैं तो उतना जल्दी से वो वापस भी आता है. आई थिंक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. वेट लॉस के लिए इट इज वेरी वेरी यूजफुल. सो अबाउट हाफ kg per week is what is recommended. How do we find out how much fat is there? And that is what I'm coming to. And since visceral fat is bad, how we identify that? So I will come to that. Is double chin a sign of obesity? देखिए काफी सारे साइंस ऑफ ओबेसिटी है. कल ही आई वुड लाइक टू शेयर अ जोक विद यू. सो
किसी ने बोला एक नया ओबेसिटी इंडिकेटर डेवलप करते हैं। आपने देखा हो कभी आजकल ये हम टच फोन या मोबाइल फोन जो हमारे स्मार्टफोन्स है इसमें टच पैड होता है, तो कई बार बात करते करते अगर हमारा फोन में कोई बटन प्रेस हो जाए, जैसे म्यूट का बटन प्रेस हो जाए, मतलब आपका चीक बहुत ज्यादा फैटी है और उसकी वजह से वो बंद हो रहा है। तो कल मजाक में कोई कह रहे थे कि इसको भी हम एक ओबेसिटी इंडिकेटर देख सकते हैं। कोई अगर फोन पे बात करते करते बार बार उनका म्यूट हो जाता है, तो that is a sign of obesity. And similarly, you're asking whether double chin is a sign of obesity. Durga Sharda ji पूछ रहे हैं. So I would say yes, there is a sign of obesity, but that is predominantly subcutaneous fat, and we'll talk about it. So that is a little better kind of a fat than compared to the visceral fat. Gaurish Shankar Dharmraj ji दोबारा पूछ रहे हैं कि if a BMI is 27, then the patient reduced to 20, shall we uh, have to decrease the risk, or shall they have decreased risk or fat reduced? Definitely, अगर हमारा BMI 27 से 25 आ गया तो definitely we would be able to say that the risk has come down. केदर जी पूछ रहे हैं कैन फास्टिंग हेल्प इन ओबेसिटी मैनेजमेंट? तो फास्टिंग भी कई प्रकार का होता है. देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बोलते हैं, तो दैट इज an important kind of a way in losing weight. But I think the important message that I'd like to leave you with is that it is what is sustainable. अगर आप फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान करते हैं तो लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं तो करिए. अगर आप सिर्फ कुछ दिन के लिए करेंगे देन it may not be very, very helpful. So I think we've talked about 4 or 5 types of obesity indicators, but let's talk about the hardcore, the more scientific, or I would say the more accurate ways of assessing fat. शुरू में Dr. Kalra ने पूछा what is obesity, what is adiposity, and what is diabesity. So let's focus on the adiposity aspect. So adiposity is essentially the amount of fat that we have, and how do we measure fat. उससे पहले स्वप्ना जैन जी पूछ रहे हैं कि can you please repeat the cutoff for the neck circumference? तो I measure again, I'll tell again कि neck circumference is measured आपका जो laryngeal prominence है, जो Adam's apple बोलते हैं गले में, उसके नीचे अगर आप measuring tape को perpendicular मतलब एक flat plane में measure करेंगे, exact flat plane में, so that is the neck circumference. And if you're talking of men and women separately, our cutoffs for men are around 37 and for women are around 34. So talking about the fat measurement or adiposity measurement, so we see that adiposity is measured with the help of several ways. जैसे आजकल बायो इम्पीडेंस एक मशीन होती है जिससे हम फैट मेजर कर सकते हैं. हमारे वेलोर में हमारे क्लिनिक में वी हैव DEXA scan. So DEXA scan is another very efficient and accurate way of measuring fat, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे. And then we have higher measures of assessing fat, that is using CT scans and MRI. वो केवल research mode में use किया जाता है. We don't use that in routine practice. So अगर हम fat के बारे में, measurement के बारे में बात करें, I think before I go into that, maybe I'd like to just emphasize 2 types of fats which are available in our body. We have something called as subcutaneous fat, मतलब हमारे स्किन या चमड़े के नीचे जो चर्बी होती है उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं. और दूसरा टाइप का जो फैट है उसको विसरल फैट बोलते हैं, मतलब जो पेट के आसपास चर्बी होती है उसको विसरल फैट, या हमारे ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, उसके आसपास जो चर्बी होती है उसको विसरल फैट बोलते हैं. तो देखा जाए तो विसरल फैट जो है वो ही ज्यादा खराब फैट है. अगर विसरल फैट ज्यादा है तो हमें शुगर होने का चांस ज्यादा है, ब्लड प्रेशर होने का चांस ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारी होने का चांस ज्यादा है. So that is the bad fat that we're talking about. But the good fat is the subcutaneous fat, जो हमको ठंड से बचाता है. या अगर हम देखें कि जो आइसलैंड या अंटार्कटिका या आर्टिक सर्कल के आसपास जो जानवर रहते हैं, पोलर बियर फॉर एग्जांपल, तो उनका सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा हो, उनका फैट ज्यादा है पर स्किन के नीचे उसमें बहुत ज्यादा ब्राउन फैट होता है. वो फैट ठंड से बचाता है, एक कुशनिंग इफेक्ट देता है. So that is a good fat. That is a metabolically active and a healthy kind of a fat. But what we are worried about is the visceral fat, जो चर्बी हमारे पेट के आसपास है. तो हम दोनों फैट को मेजर कर सकते हैं. सबक्यूटेनियस फैट को कैसे मेजर करते हैं? आई थिंक दैट्स अनदर मोर ऑफ अ रिसर्च टूल. कोई नई चीज नहीं है. वर्नियर कैलिपर
से उसको मेजर किया जाता है। कैलिपर एक सिंपल मशीन है जिसमें स्किन को हल्का सा पिंच किया जाता है, और उसके हिसाब से वी कैन फाइंड आउट हाउ मच इज द सबक्यूटेनियस फैट। तो आइडियली ये हमारे आर्म्स में पीछे की तरफ हमारी एक मसल होती है, ट्राइसेप्स मसल, उसके आसपास उसको मेजर करते हैं। एंड दिस इज द ओनली ओबेसिटी इंडिकेटर जिसमें कट ऑफ वुमेन के लिए ज्यादा है, मतलब it's 2.4 for women and 1.4 for men. It's measured with the help of a vernier caliper. We are talking about measuring of subcutaneous fat on the back side of the arm around the triceps muscle, and this is what is a very easy way to measure the subcutaneous fat. We're talking about the more bad fat, and Dr. Shashi Khare पूछ रहे हैं a very important question: how to reduce the visceral fat? और Shreya Mishra भी thank you बोल रहे हैं for this important information that is being transmitted. Thank you for that comment. And so the most important point, and I think कि अगर हमें पूरे इस वीडियो सेशन में अगर देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मेजर करना है या मेजर ऑफ ओबेसिटी या ओबेसिटी कट पॉइंट, I think that is a measurement of visceral fat. So I'll give you an example. We can estimate the visceral fat with the help of a DEXA scan. DEXA scan एक बहुत सिंपल सी मशीन है जिसको आइडियली यूज किया जाता है हड्डी की मजबूत नट्स देखने के लिए, मतलब हड्डी कितनी मजबूत है वो देखने के लिए। एंड अगर हम डेक्सा स्कैन को यूज करें फैट मेजर करने के लिए, तो हमको बताते हैं कि बॉडी में फैट कितना है। तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी इन मेन इज अबाउट मैक्सिमम 25%, इन women is about 35%. बहुत ही रफ फिगर्स बता रहा हूँ, but some things that are easy to remember. Very recently, Endocrine Society of India has published its national guidelines. We are part of it. Dr. Kalra is part of it, and we've looked at कि normal fat कितना होना चाहिए Indians में, and that's the cutoff that we've proposed: 25% for men and 35% for women. So that is the total fat. Now scientifically अगर मतलब हम डॉक्टर की तरफ से देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, तो हम बॉडी कॉम्पोजिशन को एक टू कंपार्टमेंट मॉडल की तरफ से समझते हैं। मतलब बॉडी में फैट कितना है एंड बाकी फैट फ्री मास बोलते हैं। तो वी जस्ट लुक एट बॉडी एज अ टू कंपार्टमेंट मॉडल, a fat mass and a fat free mass. Fat free mass में हमारा हड्डी, हमारा ऑर्गन, हमारा मसल, इतना पानी है, वो सब आ जाता है। पर फैट मास एंड फैट फ्री मास पढ़ते हैं, एंड फैट मास जो है 25% up to is normal in men, and up to 35% is normal in women. So that's something that's important to remember. But let's talk about the visceral fat, and वही DEXA machine जिससे हम total body fat and muscle पढ़ सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। We know that we can measure the visceral fat also with the same machine. So how do we measure visceral fat? So that is with the help of the fat which is around our organs like liver, kidney, and heart. And this is estimated well by the DEXA machine. And we have what we know as the visceral fat area. A value of more than 100 centimeter per square is said to be abnormal. A couple of years ago, we at Vellore had done a study जिसमें we had looked at mothers and daughters from Vellore, about 300 mother-daughter pairs, and we looked at as to what and how much is abnormal visceral fat, and we found that a value of visceral fat area, which is more than 100 centimeters square, is associated with prevalence of at least two cardiometabolic disorders like diabetes, hypertension, cholesterol, heart disease. So visceral fat area more than 100 centimeters square is abnormal. So friends, we've talked about different cut points today, right? Starting from BMI to waist parameters, waist में waist circumference, waist hip ratio and waist height ratio की बात की, and then we went on to other kind of parameters like talking about the body fat indices, जिसमें हमने subcutaneous fat, जिसको हमने बोला कि हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, but also talking about total body fat and visceral fat की बात की. We also spoke about newer kind of cut points using the neck circumference and the wrist circumference. And Manjula Rani Sahaji बोल रही हैं कि neck and wrist circumference ये क्या region to region and race to race vary करते हैं? Very relevant question, I would say. Thank you for that. And yes, answer है कि it does vary, but these are relatively newer parameters. देखिए BMI की हमने बात की कि that has been there for almost 200 years.
So we know कि उसका क्या variation है, why we as South Asians have a lower cutoff. But ये जो parameters हैं, neck circumference, wrist circumference, ये अभी पिछले 4-5 साल में ज्यादा इन पे रिसर्च की गई है. बट आई एम टेलिंग यू दीज कट ऑफ्स ऑफ नेक सर्कमफ्रेंस एंड रिस्ट सर्कमफ्रेंस फ्रॉम एन इंडियन data. So there is Indian data with respect to this. And ये जो हमने values बात की 37 centimeters, 34 centimeters, that is the Indian cutoff for neck and wrist circumference. So that is there. Neck circumference especially और एक जगह पे बहुत important है मोटापे से related, जिसमें हम बोलते हैं obstructive sleep apnea problem, जिसमें रात को लोग बहुत खराटे लेते हैं, सुबह उठते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर इतनी फ्रेश स्लीप नहीं थी, एंड देन होल डे दे आर स्लीपी. अगर गाड़ी में जा रहे होंगे, पीछे बैठे होंगे, पीछे बैठ के इमीडिएटली नींद आ जाएगी. तो दिस इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया व्हिच इज डायरेक्टली कोरिलेटेड with the neck circumference. So if neck circumference is more than 37 in women and 37 in men and 34 in women, that is abnormal neck circumference. And if you have that more, then you are at more risk for developing obstructive sleep apnea. केदार जोशी जी पूछ रहे हैं, क्या मोटे आदमी की भीतरी अंग जैसे लिवर, हार्ट, पैंक्रियास, किडनी भी फैट होते हैं? वो खुद से फैट नहीं होते, पर उसके आसपास बहुत फैट जमा हो जाता है, एंड दैट इज द विसरल फैट, एंड वही सबसे ज्यादा खराब फैट है. जैसे लिवर के आसपास जो फैट है बीमारी में, उसको फैटी लिवर बीमारी बोलते हैं, बट दैट इज द फैट which is most metabolically active. That is the fat which creates the worst kind of I will say adipocytokines, or the hormones that are secreted from fat, which damage all the parameters which create atherosclerosis, जिससे heart attack, stroke, किडनी प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम जो कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ से रिलेटेड है वो होता है. तो यस, आई वुडंट से कि ये ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, पर इनको ऑर्गन्स के आसपास जो फैट है वो उन ऑर्गन्स को खराब कर देता है. एंड सिर्फ उन ऑर्गन्स को ही नहीं, पर पूरे बॉडी में वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे काफी डैमेज होता है. सो आई थिंक this is a very interesting session, and thank you so much for all these comments which are coming in rapidly. I think I've been able to take most of the questions. To summarize our key learning points from this session today, we have spoken about different obesity indicators, talking right from BMI, waist circumference, waist related other parameters, the neck circumference and the wrist circumference. We've also spoken about the different types of fat, the subcutaneous fat, the visceral fat, and the total body fat. And we've spoken about the normal cutoffs. So about obesity cutoffs, as I said, is two things. हम इन 9 से 10 चीजों में कोई भी चीज यूज कर सकते हैं. सो उस पर डिपेंड करता है कि हम किसी को बोलते हैं कि उनको ओबेसिटी है या नहीं है. एंड द अदर थिंग इज हम क्या कट ऑफ यूज करते हैं. मैंने ज्यादातर कट ऑफ जो बताए हैं वो साउथ एशियन रीजन के बताए हैं, नॉट द वेस्टर्न कट ऑफ. वेस्टर्न कट ऑफ फॉर बीएमआई आर मच मोर. तो वेस्ट में बोलेंगे, अमेरिका में बोलेंगे कि अगर बीएमआई 30 से ज्यादा है तो ओबेसिटी है, पर इंडिया में बोलेंगे अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है तो ओबेसिटी. क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडियंस या साउथ एशियंस जो हैं, हमको कम बीएमआई पे ये मेटाबॉलिक बीमारी, हार्ट की बीमारी होने का ज्यादा रिस्क है, तो इसलिए ये लोअर कट ऑफ्स है. एंड that is an important message. Maybe one last point that I can touch upon, it's not only that ओबेसिटी कट पॉइंट्स की बात हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए बोलते हैं, जैसे डॉक्टर कालरा ने शुरू में बोला, इट इज ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट कट ऑफ्स. सो ट्रीटमेंट कट ऑफ्स के लिए मतलब, जैसे अगर हम पीरियाट्रिक सर्जरी की बात करते हैं, ऑपरेशन जो किया जाता है वजन कम करने के लिए, तो वो जो कट ऑफ्स हैं, जैसे अमेरिका में बोलेंगे कि अगर आपका बीएमआई 40 से ज्यादा है तो आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है, पर इंडियन कट ऑफ्स आर मच लोअर. सो मे बी 37.5 बीएमआई पे इंडियन कट ऑफ बोलते हैं, या 32.5, और साथ में अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क प्रॉब्लम है तो उस पे बोला जाता है कि कट ऑफ्स आर लोअर. सो इट्स नॉट ओनली फॉर डायग्नोसिस बट इवन थेरेप्यूटिक थ्रेशोल्ड्स एंड इंटरवेंशंस आर dependent on BMI, and this is something that we really appreciate. And there are a lot of thank you messages coming. Thank you, Dr. Kedar Joshi, Shri Mishra, Shashi Khare, Swapna Jain, sab thank you bol rahe hain. So I think this was a short and sweet message. I'm definitely sure we missed Dr. Kalra's presence, and it's very difficult to be as dynamic as sir, but I hope I've been able to at least cover the importance of this particular topic of obesity cut points. Thank you so much for listening, and we will surely meet again on this KK Med Talk platform. Thank you so much for listening. Thank you.